Greetings to all, and we appreciate your attendance today. So let's kickstart our session with this great quotation. Times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity. A very good evening to all the guests and dignitaries. In the capacity as your host for the worldwide webinar on stress management, I, Kevin Khurana, would like to take this opportunity to extend a hearty greeting to each and every one of you. It gives me great pleasure to extend a warm hello to each and every one of you gathered here today. It's a huge honor for us to have someone of this caliber there whose involvement on the topic of stress management adds so much value to it. In today's fast-paced world, stress has become constant companion for many of us. However, managing stress is not about eliminating it entirely, but about mastering how we respond to it. By understanding and addressing the sources of our stress, we can transform our challenges into opportunities for growth and resilience. Today, we will explore the practical strategies to reclaim our calm and restore balance in our lives. Before I proceed further, let me take a brief moment for the introduction of my organization. SAMS Welfare Foundation, a registered non-profit organization, is dedicated to social impact across various sectors. We focus on education, particularly skill development and entrepreneurship. Through our initiative DigiSaksham, we have created training programs in IT, finance, retail, and entrepreneurship, impacting over 6,000 individuals. We are currently upskilling inmates in Haryana jail and collaborating with universities and colleges. We have also partnered with banks to place over 1,500 candidates in jobs. Families, another SAMS initiative empowers women through workshops and stories of successful female entrepreneurs. We conduct programs on digital literacy, marketing, and career development, reaching over 1,000 women across the multiple states. This initiative recently reached a milestone of 100 women actively involved. In just a short time, SAMS has established itself a force of positive change, equipping individuals with skills for employment and promoting women leadership in various industries. Now, let me take this wonderful session publicly present and welcome Ekta Gupta, the keynote speaker for today's international webinar. She is a life coach, author, motivational speaker, trainer, and an educator. Moreover, she is an enthusiastic motivational speaker with good team management skills who believes in keeping herself motivated, which help her to motivate other people to achieve their goals. There are many gems and diamonds in the world, and one of them is here today to help us build this event. With this note, I, Kevin Khurana, on behalf of SAMS Welfare Foundation, would like to give a heartiest welcome to Ekta Gupta ma'am with a huge round of applause for joining us today. Your presence has added to the significance of this event, and we genuinely honored to have you here, ma'am. Thank you, Mr. Kurana, just It's for this pleasure. amazing introduction. And I'm so pleased and grateful to have this wonderful audience. So can I request audience turn on camera so I can see your beautiful and smiley faces, dear audience, dear participants. Thank you, Manjeet ji. Thank you so much. Thank you, Shraddhanjali ma'am. Thank you, Suresh ji. Other else, Ayush ji, thank you so much. Thank you so much. And others also I want to see because it's not a one way session. It's a like just now Kevin sir introduced कि अगर आप लोग participate करते हैं तो you'll get appreciation later. Thank you Alisha ma'am. Thank you Niket ji. So before that, before I would like to before starting the session, I would like to ask a question कि how many of you यहाँ पे जितने लोग हैं कितने लोग चाहते हैं कि अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना चाहते हैं? तो जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स मी, कितने लोग हैं जो अपनी लाइफ को हैप्पी लाइफ बनाना चाहते हैं? जस्ट या श्रद्धांजलि मैम, थैंक यू सो मच फॉर द क्विक रेस्पॉन्स. सृष्टि जी, थैंक यू सो मच. मारिया मैम, थैंक यू सो मच. डॉक्टर सुरेश जी, यस मी, थैंक यू सो मच. बस इतने ही लोग अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं. बाकी के लोग, या केविन जी, थैंक यू सो मच. सना, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर योर क्विक रेस्पॉन्स. एंड कितने लोग जो है अपने आप को एक हैप्पी सोल बनाना चाहते हैं? क्योंकि हैप्पीनेस तो बहुत लोगों के पास रहती भी है बट वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चाहे उनके पास बहुत सारा पैसा हो, सब कुछ लग्जरियस लाइफ हो, सभी चीज से वो लेवरेज हो, लेकिन फिर भी अपने आप को एक हैप्पी सोल नहीं बना पाते हैं. तो कितने लोग चाहते हैं कि आज के सेशन के बाद आप अपने आप को एक हैप्पी सोल फील कराएं? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स
HS, happy soul. Type in the chat box, happy soul, HS. Priya ji, thank you so much. Nisha ma'am, thank you so much. Thank you so much, Shraddhanjali ji. Thank you so much, Srishti ji. Thank you so much. Thank you so much, Manjeet ji. Thank you so much. So such a lovely audience and quick action taker audience. I'm so privileged to have here. अब इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ. उससे पहले मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देती हूँ. सो बिफोर दैट मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जैसे सभी लोग हैप्पी होना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया कि यस आई वांट टू बी हैप्पी. तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे हूँ हैदराबाद से, एकता गुप्ता, मेरा नाम एकता गुप्ता है और मैं हूँ हैदराबाद से, और मैं एज अ माई प्रोफेशन इज अ टीचिंग प्रोफेशन एंड दिस इज अ माई पैशन. सो क्या एक क्विक रेस्पॉन्स मैं चाहूंगी चैट बॉक्स में आप लोग टाइप करें ताकि मैं जान सकूं कि मेरे ऑडियंस जो है कहाँ से जुड़े हैं और उनका नाम क्या है. तो क्विकली टाइप in the chat box आपका नाम और आपकी जगह का नाम एंड प्रोफेशन. क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स. कोलकाता, सुरेश जी कोलकाता. श्रद्धांजलि जी ओडिशा. आयुष जी स्टूडेंट. कहाँ से हैं आयुष जी आप? प्रिया यूपी. केविन पंजाब. ओके. आयुष जी कोलकाता. अलीशा जमशेदपुर. मंजीत जी पंजाब. रोशनी जी तमिलनाडु. तो डियर डियर ऑडियंस, आपको क्या पता है कि ये जो 6 से 7 के बीच का जो टाइम है बहुत ही लाइक अपनी फैमिली के साथ कुछ लोग स्पेंड करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आप को देना चाहते हैं, कुछ लोग जिम जाते हैं उस टाइम पे, कुछ लोग अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ लोग वॉक पे जाते हैं, कुछ लोग अपने लिए टीवी देखते हैं. बट यहाँ पे आप हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे प्रेजेंट है 36 मेंबर. सो कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ सीखने की चाहत है या फिर कुछ ना कुछ आगे बढ़ने की चाहत है. तो इस आपके एंथुजियास्टिक के लिए, आपके इस एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए मैं चाहती हूँ कि आप अपना दाहिना हाथ ऊपर करें. सभी लोग अपना दाहिना हाथ ऊपर करिए जो भी है, और अपने लेफ्ट शोल्डर पे लेकर जाइए जस्ट एंड टैप योरसेल्फ एंड से वेल डन एकता. जैसे आई हैव टेकन माई नेम, वेल डन एकता, यू हैव टू ऑल्सो टेक योर नेम, वेल डन केविन, वेल डन मंजीत, वेल डन मुकेश. यस, सो टैप योर, क्योंकि कभी कभी हमें सेल्फ अप्रिशिएशन भी देना आना चाहिए. इज इट? आर यू अग्री विथ मी? क्या अग्री है आप मुझसे? टाइप इन द चैट बॉक्स मी. आर यू अग्री विथ मी? यस डियर ऑडियंस. थैंक यू आयुष जी. तो यहाँ पे जब भी हम कुछ काम करते हैं, दूसरों के अप्रिशिएशन से पहले हमें खुद को अप्रिशिएशन देना आना चाहिए. इज इट? ओके. तो एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आपके पास भगवान आ जाए और कहे कि आप क्या वरदान मांगना चाहते हैं. तो आई थिंक सभी को हिंदी समझने में प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी क्योंकि आई थिंक हिंदी ऑडियंस है. तो भगवान अगर आपके सामने आ जाए और कहे कि बेटा बोलो आपको क्या वरदान चाहिए, तो आप लोग क्या मांगेंगे? क्या मांगना चाहेंगे भगवान से? आप टाइप इन द चैट बॉक्स क्या मांगना चाहेंगे, एंड वो सब कुछ आपको मिलने वाला है. लिटरली टाइप इन द चैट बॉक्स आई वांट टू omnipotent. ओके श्रद्धांजलि जी. हैप्पीनेस एंड पीस. सुरेश जी थैंक यू सो मच फॉर अ क्विक रेस्पॉन्स. थैंक यू. प्रिया जी हैप्पीनेस. ओनली 3 लोगों को चाहिए भगवान से वरदान, बाकी के लोग वेल है. डियर ऑडियंस, निशा जी बी सक्सेसफुल इन लाइफ, गिव ऑल द हैप्पीनेस टू माय फैमिली. ओके. मंजीत जी हैप्पीनेस. तो यहाँ बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है कि हैप्पीनेस. तो कहीं ना कहीं हम अपने डेली लाइफ में उस हैप्पीनेस को मिस कर रहे हैं. कहीं ना कहीं हम इतनी भागम भाग की लाइफ हो गई है. यहाँ सुबह उठना, सुबह उठते ही ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, घर आके फिर घर का काम करना या फिर घर के बच्चों को संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, इन सब भागम भाग में कहीं ना कहीं हमारी हैप्पीनेस हमसे पीछे छूटती जा रही है, जो एक बड़ा कारण है स्ट्रेस का. आर यू अग्री विथ मी? जो हमारी जो डेली रूटीन जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हम अपने लिए टाइम नहीं दे पाते हैं और जो स्ट्रेस क्रिएट करती है. आर यू अग्री विथ मी? यू कैन रेज योर हैंड. यस आयुष जी थैंक यू सो मच. तो यहाँ पर मैं आपको प्रूव करने वाली हूँ कि स्ट्रेस नाम की कोई चीज होती है, लेकिन वो हमारी मन की सोच है, वो हमारे मन के अंदर है कि हम स्ट्रेस को कैसे लेते हैं. तो हैप्पीनेस इज विद इन अस. आई एम गोइंग टू प्रूव इट. सो क्या परमिशन है मुझे? टाइप इन द चैट बॉक्स P for permission. Type in the chat box P for permission. Thank you आयुष जी, thank you मंजीत जी, thank you so much. So केविन जी आप इनका नाम नोट करके रखिएगा. They are very active participant. Yes, ma'am. Thank you, thank you. So यहाँ पर एक छोटी सी मैं कहानी बताने जा रही हूँ. आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है? एक बैग में नोटों से भरा हुआ, थैंक यू रतुल जी, एक नोटों से भरा हुआ बैग दिख रहा है एंड दूसरे पिक्चर में आपकी लपटें दिख रही है. ठीक है. By this story you are going to know that कि happiness is within us. Stress भी है, जैसे हर सिक्के का दो पहलू होता है वैसे स्ट्रेस भी है, हैप्पीनेस भी है. बट इट हमारे ऊपर ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन अस कि हम चीजों को कैसे लेते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल में
I want 3 volunteer. Can I have 3 volunteer, please? Can I have 3 volunteer, please? Yes, Shraddhanjali ma'am. Thank you so much. Who else? More 2 volunteer. I want more 2 volunteer. So dear participants, अगर आप कॉपरेट नहीं करेंगे तो ऐसे ही फिर एक तरफा सेशन हो जाएगा और स्ट्रेस मैनेजमेंट का 1 आवर लेने का कोई मतलब नहीं रहेगा. तो जस्ट रेज योर हैंड. आई वांट, मैं कहीं आपको भगाने वाली नहीं हूँ. आप अपने घर में, मैं अपने घर में. जस्ट रेज हैंड. ओके श्रद्धांजलि जी, ओनली वन पार्टिसिपेट. ओके चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. तो यहाँ पे आप श्रद्धांजलि जी, मैं और चलो केविन सर, कैन आई टेक योर नेम इफ यू डोंट माइंड? Yes, ma'am, sure. या थैंक यू सो मच. सो यहाँ पे केविन जी, मैं और श्रद्धांजलि जी कहीं जा रहे थे. सपोज अपने घर से बाहर जा रहे थे. तीनों का घर आसपास है. हम घर से बाहर जा रहे थे. तभी श्रद्धांजलि जी को एक 2,000 का नोट मिलता है. ठीक है. देन श्रद्धांजलि जी बहुत खुश हो जाती है कि अरे वाह, भगवान ने मुझे आज सुबह सुबह बहुत अच्छा दे दिया और मुझे 2,000 का नोट मिल गया. देन इमीडिएटली केविन जी के मन में क्या आता है कि अरे भगवान जी हमेशा श्रद्धांजलि जी के साथ अच्छा करते हैं, मेरे साथ कुछ अच्छा करते ही नहीं, और मैं तो कुछ बोलूंगी ही नहीं क्योंकि मुझे भगवान के ऊपर है नहीं ट्रस्ट कि वो मेरे साथ कुछ अच्छा कर सकते हैं. ठीक है. तो मैं ऐसा सोच के हम दोनों अपना थोड़ा सैड होके चलते जा रहे हैं श्रद्धांजलि जी के साथ. तभी थोड़ा आगे बढ़ते ही केविन जी को अगले मोड़ पे 2,000 रुपए के बंडल मिलते. कितने के बंडल मिलते हैं? 2,000 रुपए के बंडल मिलते हैं. और केविन जी को देख के श्रद्धांजलि जी थोड़ी सैड हो जाती है कि अरे यार, ये बंडल मुझे क्यों नहीं मिला. एंड एज यूजुअल आई हैव नो होप कि मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा. ठीक है. मैं परेशान होके चलो साथ में. ठीक है. केविन जी बहुत हैप्पी, श्रद्धांजलि जी हैप्पी. ठीक है. फिर मुझे जाते ही मैं उदास होकर घर के पास वाले पार्क में बैठती हूँ और मुझे वहां पे रुपयों से भरा बैग मिलता है. ठीक है. अब मैं भगवान को बहुत थैंक यू बोलती हूँ कि थैंक यू भगवान, आपने तो केविन से और श्रद्धांजलि से ज्यादा मुझे किस्मत दी है, इतना सारा रुपया मुझे दिया है. और मैं आके इन दोनों से बात करती हूँ कि देखो मुझे क्या मिला है. तभी थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी की आवाज आती है, सायरन सुनाई पड़ती है और पुलिस जो आता है हमारे पास रुक जाता है. और रुकते ही वो बैग की ओर इशारा करता है कि यह जो बैग है, बैंक से लूटा हुआ पैसा इसमें है और यह बैग जिसके पास है उसे पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा. Then what is your feeling, Shraddhanjali ji, Kevin ji? What is your feeling? Sorry, Yeah, you can speak. ma'am. Could you just repeat it again, please? Just I got the full bag of money, है ना? And Yeah. then after some time, the cop came and he said कि that is robbers' money, robbery from the bank. They robbed and put us somewhere, and I got. So you have to also go along with us in the police station. So what is your response? Immediately, Ma'am, what do you think? firstly, we will try to rectify that we didn't steal this, so we got No, it. no, that is not belongs to it. It is with me. Okay. It is with me. So what do you think? मतलब just एक immediately thought क्या आएगा आपके मन में? Fear आएगा कि ये क्या हुआ? Okay, केविन जी आपके मन में क्या आएगा? Ma'am, what I would thought is like, thank God that I didn't get that bag. Yeah, absolutely. है ना? Immediately you people will think कि thank God ये बैग हमें नहीं मिला, है ना? So see, यहाँ पे state of mind, how it changed. When she got 2,000 rupees, we got sad. Again you got 2,000 rupees bundle, you got happy. Again I got full bag of money, I feel happy. So how it is changing? It depends on our state of mind. If it is हमारे मन का हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है, नहीं हो तो खराब लगता है. Then we feel sad, stress, अरे उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा. So many things, right? Now one story I would like to share कि यहाँ पे जो फायर देख रहे हैं, एक बहुत ही बड़ा बंगला है, बहुत ही बड़ा घर है और उस बंगले में एक पिता और बेटा है. पिता और बेटा दोनों कहीं काम से बाहर गए रहते हैं. पिता जैसे ही काम से वापस आता है, is coming back to home, इस सेइंग कि उसके घर में पूरा आग लग चुका है, लग चुका है और वो चिल्ला रहा है रो रो के, नहीं मेरा बेटा इसके अंदर तो नहीं है, कोई उस आग को बुझाओ, मेरा बेटा है तो इसमें मर जाएगा. वो जोर जोर से चिल्ला के रोता है, हेल्प के लिए पूछता है. तभी एक उसका पड़ोसी आता है और कहता है कि भाई साहब, ये तो बंगला जो है आपके बेटे ने बेच दिया है सुबह ही. ठीक है.
इमीडिएटली उसके सारे आंसू, सारे दुख खत्म हो जाते हैं। कहीं भी तरह का उसके मन में, दिमाग में किसी भी तरह का दुख तकलीफ कुछ नहीं होता है। इमीडिएटली ही वाज वेरी हैप्पी कि ओ थैंक गॉड, चलो अब ये बंगला मेरा नहीं है, जले तो जले, इससे मुझे क्या, ठीक है। तभी उसका बेटा आता है पीछे से और कहता है कि बाबूजी वो डील नहीं हुआ। तो उसका पिता फिर से रोना स्टार्ट करता है कि अरे मेरे करोड़ों की संपत्ति चली गई। तो इस कहानी से आपको क्या समझ में आता है? इट्स आल्सो स्टेट ऑफ माइंड कि जो चीज हमसे बिलोंग करती है हम उसके प्रति इतना अफेक्शन रख लेते हैं। एक मिनट उसको पता चला कि ये घर मेरा नहीं है, देन वाज वेरी हैप्पी इमीडिएटली, एंड द नेक्स्ट मोमेंट उसको पता चला कि ओके मेरा मेरा ही घर है, देन अगेन ही वाज फीलिंग सैड। यस, नेक्स्ट स्ट्रेस क्या है? तो जो स्ट्रेस होता है ना, हमारा सिर्फ और सिर्फ इमोशनल एंड फिजिकल टेंशन। So Manjeet ji, can you read for me? Can you hear it? Can you see it? Please read it. Unmute kariye sir. So I think he is unable to unmute. So stress is a feeling of emotional or physical tension. Just now I gave two example. In that the person is totally in that form of emotionally, like he is unable to control his mind. Now it's a physical response. It can come from the any event through that makes you feel frustrated, angry, or nervous. It will be come from the small thing or big thing also. So it can be both emotional and physical response to situation that we perceive as challenging as threatening. Sometimes कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग हमें डांट देते हैं। अगर हम किसी ऑफिस में काम करते हैं, बॉस का मूड सही नहीं है एंड ही वाज सेइंग समथिंग, देन वी उसको दिल पे लगा लेते हैं और पूरा दिन अपना खराब कर लेते हैं। घर में जाके बीवी से बच्चों से भी बहसबाजी कर लेते हैं, उनसे लड़ाई कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह की चीजें जो होती है अक्सर हमें स्ट्रेस फॉर्म करने का कारण दे देती है। नेक्स्ट क्या है? मिथ। तो बहुत सारे मिथ भी है स्ट्रेस को लेके कि stress is the same for everyone. This is one myth कि stress is the same for everyone, and but this is not correct. Stress can vary person to person. Like जो बात मुझे बुरी लग सकती है जरूरी नहीं है कि आपको भी बुरी लगे। Is it? Are you agree with me? Yes or no? है ना? जो बात मुझे बुरी लग सकती है जरूरी नहीं है कि आपको भी बुरी लगे। तो स्ट्रेस जो होता है हर पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ये जरूरी नहीं है कि एक ही पर्सन के हिसाब से स्ट्रेस भी सेम रहे। नेक्स्ट क्या होता है? स्ट्रेस इज ऑलवेज बैड फॉर यू। कुछ लोग कहते हैं कि स्ट्रेस हो गया है, हम एंजाइटी में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, बट स्ट्रेस इज नॉट ऑलवेज बैड फॉर यू। बिकॉज कुछ लोग अंडर प्रेशर बहुत काम करते हैं। हीरा जो होता है कोयले की खदान से निकलकर बहुत तपता है, घिसता है, तब जाकर वो चमकता है। अंडर प्रेशर वो काम करता है, तब जाकर वो एक चमकता हुआ हीरा बनता है और सारी दुनिया में एक वैल्यूएबल इनक्रेडिबल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर भी जो स्ट्रेस होता है हमेशा बुरा नहीं होता है। स्ट्रेस जो होता है कभी कभी अच्छा भी होता है, क्योंकि उस स्ट्रेस में बहुत सारे लोग एक्सीलेंट काम कर जाते हैं। बच्चे जो है स्ट्रेस में बहुत अच्छी पढ़ाई भी कर लेते हैं। उस स्ट्रेस में जो एम्प्लॉय है अपने टारगेट को पूरा भी कर लेते हैं। Are you agree with me? Type in the chat box A. Please type in the chat box A. अगर आप लोग agree हैं, श्रद्धांजलि जी, thank you so much. So now third point क्या है? थर्ड myth क्या है? Thank you आलम खान जी, थैंक यू सो मच। यहाँ पे थर्ड पॉइंट क्या है कि जो जस्ट गिव अ मिनट। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट कि जो स्ट्रेस है हमेशा हमें हर जगह रहता है और हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों का मानना है कि स्ट्रेस हर जगह रहता है, हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, बट दिस इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। स्ट्रेस हर जगह होता होगा, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है और उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। यहाँ पर क्या है? द मोस्ट पॉपुलर टेक्निक्स। यहाँ पे स्ट्रेस के बारे में बताया गया कि अगर आपको स्ट्रेस है तो सबके लिए एक ही टेक्निक काम आएगी। तो जैसे स्ट्रेस सबके लिए बराबर नहीं है, तो क्या टेक्निक सबके लिए बराबर हो सकती है? तो क्या टेक्निक बराबर सबके लिए हो सकती है? हो सकता है किसी को योगा करने से, ब्रीथ आउट ब्रीथ इन करने से स्ट्रेस बाहर जाए। हो सकता है किसी को डांस करने से स्ट्रेस बाहर जाए। हो सकता है किसी को गाना गाने से स्ट्रेस बाहर जाए। हो सकता है किसी को बात करने से स्ट्रेस बाहर जाए, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टेक्निक्स हो सकते हैं जिससे वो अपना स्ट्रेस कम कर सकते हैं। यस, आर यू गेटिंग वैल्यू? आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ, जो बता रही हूँ? थैंक यू श्रद्धांजलि मैम। सो हियर फ्यू पॉइंट्स आर देयर। व्हाट इज द सोर्स ऑफ स्ट्रेस? थैंक यू आयुष जी, थैंक यू निशा मैम। सो हियर आर फोर टाइप्स ऑफ like sources where we got the stress. First one is threatening. थ्रेटनिंग मीन्स कि हम किसी को डांटते हैं, अनवांटेड चिल्लाते हैं किसी के ऊपर, अनवांटेड या वांटेडली भी चिल्लाते हैं। यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं कि एक हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के ऊपर चिल्ला रहा है और बच्चा जो है शांत से बैठा हुआ है। यू कैन सी इन द स्लाइड। तो यहाँ पर
आप जब देखेंगे कि सुबह-सुबह अक्सर ये इस बातों से बहुत सारे लोग रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अक्सर सुबह हम जब उठते हैं तो बहुत टेंशन में उठते हैं कि ऑफ़िस जाना है, घर का काम खत्म करना है, ये काम है, वो काम है। इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उस फ्रस्ट्रेशन में अपने ही लाइफ़ पार्टनर के ऊपर या अपने ही लोगों के ऊपर हम चिल्ला लेते हैं और पूरा दिन हमारा उसी टेंशन में, उसी बहस की सोच में, उसी पास्ट में निकल जाता है। तो दैट इज़ थ्रेटनिंग। वन इज फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन कब होता है? जब हम किसी काम को नहीं कर पाते और हम सबको हाँ बोल देते हैं। तो हमारे अंदर एक ऐसी आदत है हाँ बोलने की। हम जो काम नहीं कर सकते उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं कि उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए भी हम हाँ बोल देते हैं। सपोज़ आपके आपके नेबर ने कुछ काम बोला, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप उसे ना बोल दीजिए। अगर हाँ बोल देंगे तो आपको उस काम को करना पड़ेगा और सपोज़ अगर आपके पास टाइम नहीं है, then you're getting frustrated. अरे मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कैसे करूँगा? कैसे खत्म करूँगा? Yes. Next one is pressure and fourth one is conflict. Pressure can be for students like पढ़ाई का प्रेशर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर हो सकता है, मनी का प्रेशर हो सकता है, जॉब का प्रेशर हो सकता है, वर्क प्रेशर हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहस करना, ठीक है? तो बहस करने के ऊपर एक छोटी सी कहानी है, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं सुना सकती हूँ? टाइप इन द चैट बॉक्स पी कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना? थैंक यू आयुष जी, थैंक यू सो मच। सो हियर एक बार क्या हुआ, जंगल में एक बार शेर और गधा, शेर जो था जंगल का राजा था, गधा और भेड़ दोनों मिलके घास खा रहे होते। तो भेड़ बोलती है कि गधे भाई आपका जो घास हम खा रहे हैं, जो जंगल की जो हम घास खा रहे हैं, वो कितनी ही बड़ी अच्छी है, हरी हरी है, कितनी नरम है, कितने खाने में मजा आ रहा है। तो गधा क्या बोलता है कि पागल है क्या तू? ये जो घास है वो हरी नहीं है, नीली है। गधे ने क्या कहा? घास कैसी है? मंजीत जी घास कैसी है? टाइप इन द चैट बॉक्स। तो उसमें जो घास है वो कैसी है? नीली है। भेड़ और गधे की बहस छिड़ जाती है, आपस में बहस करने लगते हैं, दोनों आपस में अपने आप को सही बताने के लिए बात करने लगते हैं, बहस करने लगते हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो डिसाइड करते हैं कि चलो हम जंगल के राजा शेर के पास चलते हैं और वो ही हमारा न्याय करेंगे। जब ये जाते हैं जंगल के राजा शेर के पास जाते हैं, तब वहाँ पे पता चलता है जंगल का राजा जो शेर होता है वो बोलता है कि सिपाहियों भेड़ को जेल में डाल दो। क्या कोई बताएगा कि लोगों ने शेर ने भेड़ को जंगल में क्यों डाला? कोई बता सकता है? टाइप इन द चैट बॉक्स या अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट करके बताइए। तो यहाँ पर जो भेड़ भेड़ ने अपना कीमती समय ऐसे आंसर के लिए, ऐसी बहस के लिए बर्बाद किया जिसका कोई मायने ही नहीं रखता है। घास हरी होती है, गधे के नीले कहने से घास नीली नहीं हो जाएगी। आर यू एग्री विथ मी? जो चीज सूरज पूरब से उगता है, अगर कोई कह देगा कि ये पश्चिम से उगता है, तो क्या वो पश्चिम से निकलेगा क्या? टाइप इन द चैट बॉक्स यस और नो। आर यू एग्री विथ मी? टाइप यस यस, थैंक यू सो मच। तो जो चीज फैक्ट है, जो बदलने वाला नहीं है, किसी के कहने से बदलेगा नहीं, यस। तो उस चीज के लिए भी हम परेशान हो जाते हैं, जैसे भेड़ परेशान हो गई कि घास हरी है बट ये नीला क्यों कह रहा है गधा? हमें क्या करना है? इमीडिएटली ओके यू आर राइट, यू आर राइट, वहां से कह के हट जाना है, बिकॉज वी नो वी आर राइट। यस, बिकॉज हमको पता है कि हम सही हैं और उस वहां पे ही उस बहस को खत्म करना है और अपने काम में ध्यान देना है। नेक्स्ट वन इज, सो यहाँ पे एक एक्टिविटी है कि जब हम एक आधा भरा ग्लास अपने हाथ पे रखते हैं, एक 10 सेकंड के लिए रखते हैं, तो हमें कुछ भार फील नहीं होता है, कुछ भी स्ट्रेस फील नहीं होता है। लेकिन उसी आधे भरे ग्लास को अगर हम 2 मिनट 3 मिनट अपने हाथ पर रखेंगे तो क्या होगा? कोई आंसर बता सकता है? क्या होगा अगर हम आधे भरे ग्लास को 2-3 मिनट अपने हाथ पे इस तरह से रखेंगे तो क्या होगा? कैन एनीवन टाइप इन द चैट बॉक्स? यस। तो हमारे हाथ में क्या पड़ जाएगी? हमारे हाथ में नम पड़ जाएगा, हमारा हाथ सुन्न हो जाएगा और हम उस ग्लास को उठा नहीं पाएंगे बहुत देर तक। It will feel heavy. Yes, श्रद्धांजलि मैम, thank you so much for big response. तो हमारा हाथ जो होता है कंटिन्यूअस भारी होता जाएगा और जो ग्लास है शायद छूटकर नीचे भी गिरकर टूट सकती है, राइट? तो वैसे ही स्ट्रेस का भी कुछ काम होता है कि जब हम स्ट्रेस को थोड़ा देर के लिए अपने दिमाग में होल्ड करते हैं, अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो उस स्ट्रेस को हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस। क्या स्ट्रेस कहते हैं? टाइप इन द चैट बॉक्स एएस, एक्यूट स्ट्रेस। टाइप इन द चैट बॉक्स एएस, एक्यूट स्ट्रेस। जब स्ट्रेस थोड़े देर के लिए रहता है, बहुत टेम्पररी रहता है, तो हम उसको कहते हैं, यस थैंक यू श्रद्धांजलि मैम, उसको हम कहते हैं एक्यूट स्ट्रेस। लेकिन जब वही स्ट्रेस लाइक भाप आधे भरे ग्लास के साथ, थैंक यू मंजीत मैम, आधे भरे ग्लास के साथ
हम काफी देर तक रखते हैं तो हमारा हाथ सुन पड़ जाता है, हमें वो भारी लगने लगता है और वो हाथ से छूट कर गिर जाता है। तो वैसे स्ट्रेस को हम कहते हैं जो बहुत लंबे समय तक हमारे ऊपर हावी रहता है, हमारे दिमाग में भरा रहता है, वैसे स्ट्रेस को हम कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। क्या कहते हैं? क्रोनिक स्ट्रेस। CS, क्रोनिक स्ट्रेस। वैसे स्ट्रेस को हम कहते हैं क्रोनिक स्ट्रेस। यस, थैंक यू श्रद्धांजलि मैम। तो वॉट एवर, थैंक यू आयुष जी। जो भी लाइफ में होता है ना, वो सिर्फ 10% होता है। 90% what we are going to be react, 90% how we react it, that is the output of the things, output of the challenges, output of the situations. Yes, तो एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहूंगी, E प्लस आर इज इक्वल टू ओ। आप चाहे तो लिख सकते हैं कहीं, E प्लस आर इज इक्वल टू ओ। इट मीन्स जो भी चीजें हैं हमारे साथ जब होती है तो वो सिर्फ 10% का हिस्सा है, और जो भी रिजल्ट और रिएक्शन, जो भी इवेंट होता है, इवेंट इट मीन्स कोई भी सिचुएशन, कोई भी चैलेंज हमारी लाइफ में आता है तो उसका रेस्पॉन्स करना है हमें या रिएक्ट करना है। रिएक्ट मीन्स इमीडिएटली बर्स्टिंग आउट, रेस्पॉन्स मीन्स सोच के कि हाँ हमें इसके ऊपर बात करना चाहिए या नहीं, या हमें अपनी वॉइस को बढ़ाना चाहिए या नहीं इस पर्टिकुलर चैलेंज के ऊपर, एंड उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आउटपुट तैयार होता है। यस, तो नेक्स्ट चलते हैं कि इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस से हमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते और हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल सी चीज है, जैसे कब्ज हो सकती है, भूलने की बीमारी हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर, एनर्जी लेवल कम हो जाना, या किसी काम पे फोकस नहीं कर पाना, अकेला रहने में खुशी फील करना, एसिडिटी हो जाना, नींद नहीं आना, ये सभी हेयर फॉल, ब्रीथ शॉर्टनेस। यस अंजलि गुप्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग मोर वैल्यू, थैंक यू। तो 200 करोड़ स्लीपिंग पिल्स, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 200 करोड़ स्लीपिंग पिल्स एनुअली बिकते हैं, और 1,65,000 लोग सुसाइड करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस की वजह से। जस्ट थोड़ी सी अवेयरनेस अगर वो ला लेंगे तो ये जो मार्केट है स्लीपिंग पिल्स का या फिर सुसाइड केस जो है, इमीडिएटली इसका ग्राफ जो होगा लेवल कम हो जाएगा। यस, तो लोगों को इतना स्ट्रेस हो जाता है, इतना वो अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, अपने आप को उस सिचुएशंस को हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें क्या लगता है, उन्हें लगता है कि जीना बहुत मुश्किल है और मरना आसान है, जीना बहुत मुश्किल है और मरना आसान है। तो यहाँ पे एक कोटेशन है कि इवेंट हैज नो मीनिंग, इवेंट हैज नो मीनिंग, यू गिव मीनिंग टू द इवेंट। It means just now I gave one formula, E plus R is equal to O. E plus R is equal to O. So what is the event is going on and what is our reaction or what is our response? It decide the output. It decide the meaning of the event. And one more quotation कि whatever is going into our life that is only 10%. And बाकी का क्या है 90%? हमारा reaction और हमारा response towards our challenges. Yes. Now here the thing is कि how to manage our stress. So cortisol नाम का एक हार्मोन होता है जिसको हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, जो एड्रिनल ग्लैंड में बनता है। तो यहाँ पे उस स्ट्रेस को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स ट्रिक्स हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले कि हम देखते हैं कि अपने अपने स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो सबसे पहले कि हमें अपने प्रॉब्लम्स को समझना होगा कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। सो डियर फ्रेंड, जो भी लोग हैं यहाँ पे, आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर कभी आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आता है तो डोंट से एज अ प्रॉब्लम, उसको प्रॉब्लम मत कहिए, उसको कहिए चैलेंज। व्हेन यू स्पीक दोस टू वर्ड्स, व्हेन यू से प्रॉब्लम, देन इट फील्स कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये कभी सॉल्यूशन, इसका कभी कोई सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा। देन व्हेन यू हैव से चैलेंज, then you feel कि yes I can face it. Yes, एक बार आप खुद से बोल के देखिए, mentally you say just challenge and problem, एक बार आप बोल के देखिए, दोनों दोनों शब्द का कितना वजन है आपको खुद समझ में आएगा। प्रॉब्लम ऐसा लगेगा कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, कितना वजन है इसमें, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आप प्रॉब्लम को चैलेंज में शिफ्ट करते हैं, जैसे ही आप प्रॉब्लम को चैलेंज वर्ड में स्विच करते हैं, तो आपको क्या लगता है Yes, we can face it. We can face it. We can overcome with this. So first, सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने challenges को हमें rectify करना है। Actually problem है कहाँ और क्यों है? Okay? The second one is set realistic expectations. आपको खुद से या अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, आपके हस्बैंड से क्या expectations है,
सेट रियल वन। कुछ लोग होते हैं कि हाँ बस हवा में बात कर लिए, कुछ एक्सपेक्टेशंस बना लिया और उसके ऊपर ही बात करते हैं। लेकिन जब आपके सामने वाला या फिर जब आप खुद उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, देन यू फील स्ट्रेस, देन यू फील फ्रस्ट्रेशन, देन यू फील एंजाइटी। उस टाइम पे क्या होता है, आप खुद को ही ब्लेम करने लगते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं कि मैं ये काम कर नहीं पाया, या मैं आपके लायक नहीं हूँ, या मेरे से ये होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है और आप स्ट्रेस फील करने लगते हैं। थर्ड वन, लर्न टू से नो। कितने लोगों को नो बोलना आता है? अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपके कोई भी रिश्तेदार या जान पहचान वाले कुछ काम बोलते हैं, तो कितने लोग ना बोल पाते हैं? Just type in the chat box me. It's me. श्रद्धांजलि मैम, thank you so much. आयुष जी, thank you so much. सृष्टि जी, तो आप लोगों को नो बोलना आता है, इसके लिए निकेत जी आई कांट, so you have to learn निकेत जी, मंजीत जी वेरी गुड। क्योंकि जब आप लोगों को ना बोलना सीख जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं, सना मैम थैंक यू सो मच, इट्स मी, जब आप लोग ये सीख जाते हैं ना नो बोलना, तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अच्छे बनने के चक्कर में, लोगों के सामने हमारी इमेज खराब ना हो उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, अपना काम या तो साइड में रख देते हैं, या फिर हमें कितनी भी कष्ट क्यों ना उठाना पड़े, कितना भी प्रॉब्लम फेस क्यों ना करना पड़े, हम क्या करते हैं, उनके काम को नहीं बोल पाते हैं और इसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्ट्रेस फील करने लगते। ठीक है, नेक्स्ट वन इज कि चेंज योर एटीट्यूड। चेंज योर एटीट्यूड इट मीन्स कि प्रॉब्लम तो सबके लाइफ में आती है, बट आपको रिएक्ट करना है या रिस्पॉन्ड करना है, दैट इज यू हैव टू चूज। यू हैव टू चूज whether you have to react or respond. So both have different meaning. React, no sense, no output, only problem. And if you respond to the challenge, will get the quality of output. Next one is change your attitude is done. Take care of yourself. बहुत सारे लोग होते हैं कि इतने बिजी रहते हैं कि उनको खुद के लिए टाइम नहीं मिलता। यहाँ पे कितने सारे लोग हैं जो खुद के लिए टाइम निकालते हैं? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, खुद के लिए टाइम निकालते हैं। कभी खुद के लिए अकेले में बैठ के, अंजलि जी थैंक यू सो मच, इट्स सच ए ग्रेट वंडरफुल, सृष्टि जी यस, मंजीत जी, तो रतुल जी, तो आप लोगों को कभी स्ट्रेस होगा ही नहीं, क्योंकि जो लोग अपने लिए समय निकालते हैं, अपने लिए अपने आप को ग्रूम करने के लिए, कुछ नई चीजों को सीखने के लिए, दे नेवर फील स्ट्रेस। और उस मी टाइम में आपको क्या करना है, आपके मनपसंद चीजों के ऊपर काम करना। इट कैन बी डांस, इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी रीडिंग बुक्स, इट कैन बी टॉकिंग विद समवन, it can be walking, it can be spend time with your kids, it can be spend time with your pets। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पसंद है, उस मी टाइम में आप वो काम करिए। डेली का कम से कम आधा घंटा आप अपने लिए निकालिए। तो कितने लोग हैं जो आप अपने लिए टाइम निकालेंगे? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। खुद के लिए टाइम निकालेंगे? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। थैंक यू आयुष जी, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे नेक्स्ट डेली आधे घंटे में कम से कम हमें एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन तो करना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारे लाइफ में इतना स्ट्रेस भरा हुआ है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतने चैलेंजेस है, ये सबको मैनेज करने के लिए, ये सबको बैलेंस रखने के लिए एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन इट्स गोइंग टू बी हेल्प अस कि आप कैसे अपने स्ट्रेस को एक जगह रख के, एक जगह आप कैसे समेट के रख सकते हैं, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे सकते। इट शुड नॉट बी डोमिनेट टू यू कि आप कुछ रॉन्ग स्टेप ले लें। कुछ बच्चे रहते हैं, अगर वो गेम एग्जाम के टाइम पे भी गेम खेलते हैं, लेकिन जब मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, दे विल फील स्ट्रेस एंड दे चूज सम रॉन्ग पाथ, राइट? वो क्या करते हैं, कुछ गलत पाथ को चूज कर लेते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ का क्या मतलब है कि आप कल के लिए रेडी रहना है, टू डू लिस्ट बनाना है, कल क्या काम करना है। फर्स्ट यू हैव टू चूज द हार्ड वर्क। जो आपको लगता है कि ये काम करने में टाइम लगेगा, पहले आप उस काम को चूज करिए। उसके बाद सुबह आपको क्या पहन के जाना है, साइड में निकाल के रखिए। क्या बनाना है, उसको साइड में रखिए। क्योंकि जब आप अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें बहुत शॉर्ट आउट हो जाती है। आर यू एग्री विथ मी कि जब आप अपने आप को, यस, प्री प्लानिंग, इट कैन बी प्री प्लानिंग। यस अंजलि जी, थैंक यू सो मच। यस आयुष जी, थैंक यू सो मच। तो ये जो प्री प्लानिंग है, हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जब हम ये जो प्री प्लानिंग नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट डे हम ऐसे ही उठेंगे मेस होकर, और सुबह उठते ही किचन में भागेंगे, किचन में काम करेंगे, काम करने के साथ साथ बच्चों को उठाएंगे, हस्बैंड को उठाएंगे, घर का काम करेंगे, भाग के ऑफिस जाएंगे। Everything is going to be mess. Yes or no? So you have to pre-planning.
you have to do to make to-do list and work accordingly. Next one is, here is one picture you can see. Can you see the picture? कौन-कौन है picture में? Can you type here the three known faces? Can you type in the chat box? कौन-कौन आपको दिख रहे हैं? Who are they in the picture? गांधी जी, yes, Ayushi, true. गांधी जी, महात्मा गांधी जी, yes. और बाकी के दो लोग कौन है? One is a famous reporter of Pakistan. One is a motivational speaker, Nick Vujicic. See here. जब आप गांधी जी को देखते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि एक बहुत ही पतला दुबला सा इंसान जो सिर्फ धोती पहनता है, वो अंग्रेजों को मारकर भगा दिया। क्यों? क्योंकि उसको एक बार जब वो जा रहे थे अफ्रीका अपनी पढ़ाई के लिए, तो उनको ट्रेन से धक्के मारकर निकाला गया था और कहा गया था कि आप इस ट्रेन में सफर नहीं कर सकते। तो उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, चुपचाप से वो उठे और उन्होंने मन में क्या सोचा कि यस, एक दिन मैं आप लोग को इस देश से बाहर निकाल के बताऊंगा। So that is the response type of work. One is Nick Vujicic, जिसके न तो हाथ है न पैर है, बचपन से ही जिसके हाथ है न पैर है, and today he is a great motivational speaker. So अगर हमें कहीं चोट लग जाती है, suppose एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, अगर हमें कुछ बीमारी हो जाती है, इमीडिएटली हम क्या करते हैं? What we do immediately? ये अभी होना था क्या? ऐसी परेशानी मुझे अभी होनी थी क्या? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? है ना? बहुत सारी चीजें जो है हम इस तरह से बात करने लगते हैं और लोगों को बताने लगते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। जो भी इवन इवन हम भगवान के ऊपर भी कंप्लेन करते हैं कि आप हमेशा मेरी लाइफ में बुरी चीजों को ही भेजते हो। इस तरह की बातें हम करते हैं, लेकिन निक के पास तो ना हाथ है ना पैर है। यस, ना तो हाथ है निक के पास और ना ही पैर है। तो निक को क्या करना चाहिए? निक को क्या करना चाहिए? कैन एनीवन टाइप इन द चैट बॉक्स, निक के पास हाथ है ना पैर है, तो निक को क्या करना चाहिए? कैन एनीवन टाइप इन द चैट बॉक्स कि निक को क्या करना चाहिए? निक के पास तो हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो निक को बैठ के रोना चाहिए क्या कि मेरे पास तो हाथ पैर नहीं है, मैं कैसे अपनी लाइफ को गुजारा करूंगा, कैसे मैं इतनी बड़ी दुनिया में कैसे अकेले सर्वाइव करूंगा? इस तरह की बातें क्या निक को करनी चाहिए? यस, यूज माउथ इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग। तो जब हम किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं, बट निक ने अपने अपने लाइफ को एक ब्लेस्ड लाइफ समझा, उसे परेशान उसमें उसने अपने हाथ पैर को कमजोरी नहीं बनाया। ठीक है, मेरे पास हाथ पैर नहीं है तो नहीं है, और उसने अपने ऊपर मेहनत की, उसने बहुत सारी चीजें सीखी, बहुत सारी चीजों को उसने अपने अंदर उतारा और आज वो एक इतना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। यस, थैंक यू राहुल जी, थैंक यू। और जो हमारी यहाँ पे है मुबीना मजारी जो है पाकिस्तान की एक फेमस पत्रकार है और एक मोटिवेशनल स्पीकर है। यस सिंगिंग, यस रंजन जी। तो यहाँ पे जो मुबीना जी है, एक उनकी उनके साथ हादसा हुआ था जिन पे उनका कमर से लेके नीचे तक की पार्ट काम नहीं करता है। She is still in wheelchair and आज एक great सक्सेसफुल मोटिवेशनल स्पीकर है, रिपोर्टर है, उनकी एक अपनी अलग पहचान है। और वही चीज इंसिडेंट अगर हमारे साथ हो जाए तो हम क्या सोच लेते हैं कि भगवान ने ये परेशानी सिर्फ मुझे ही दी है। हम क्या करते हैं, जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तो हम भगवान को कभी शुक्रिया नहीं कहते, कभी ग्रेटिट्यूड नहीं कहते, लेकिन जब हमें परेशानी आ जाती है तो उस परेशानी का कंप्लेन हम जरूर करते हैं। यस, यस और नो, आर यू रिलेटिंग विथ मी? मेरी बातों से आपको वैल्यू मिल रही है? समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बता रही हूँ? तो कभी भी, यस थैंक यू, कभी भी, थैंक यू प्राची जी, थैंक यू प्रिया जी। तो कभी भी अगर आपको स्ट्रेस फील होता है तो एक पेपर लीजिए और सिंपली आप लिखिए कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं, किस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके लिए आप भगवान को थैंक यू बोल सकते हैं। आप देखोगे कि आप इतने ब्लेस्ड हैं कि आपसे ब्लेस्ड कोई और नहीं है दुनिया में। लेकिन इंसानी फितरत क्या है? व्हाट इज द ह्यूमन टेंडेंसी, ह्यूमन बिहेवियर, कि आदमी को अगर 2 रुपए की चीज नहीं मिले ना, 2 कौड़ी की चीज, तो वो करोड़ों रुपए की चीज को सोचने लगता है कि वो बेकार है। और जब उसे 2 कौड़ी की चीज मिल जाती है, करोड़ों की चीज उसको बेकार लगने लगती है। और जब करोड़ों की चीज मिल जाती है तो वो 2 कौड़ी की चीज के पीछे भागता है। मतलब जो उसके पास है उसकी वो कदर करता ही नहीं है। और द मेन सोर्स ऑफ स्ट्रेस इज दिस ओनली, कि हमें सेटिस्फैक्शन ही नहीं है कि हमारे पास कितनी सारी ब्लेसिंग्स है, कितनी सारी चीजें हैं जो हम अपनी लाइफ में यूज करके कुछ अच्छा कर सकते हैं। यस, ग्रीडी एवरी टाइम, यस अंजलि मैम, यू आर ट्रू। सो एक क्विक टिप्स देना चाहूंगी कि आप कैसे
अपने आप को ऑलवेज हैप्पी रख सकते हैं, ऑलवेज स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। तो आपको अपने मिरर के पास जाना है। सबके घर में मिरर है, यस और नो? सबके घर में मिरर है। आप मिरर के सामने जाइए। वहां जाने के बाद सामने खड़ा हुइए और अपने प्रॉब्लम को याद करिए। आपका जो भी चैलेंज है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, उसको याद करिए और पूछिए, खुद से पूछिए, डू यू हैव प्रॉब्लम इन योर लाइफ? खुद से पूछिए, मिरर के सामने जाइए और खुद से पूछिए, डू यू हैव प्रॉब्लम इन योर लाइफ? यस और नो? तो सवाल का आंसर तो मिलेगा ही। आपने सवाल पूछा है खुद से, तो आंसर भी मिलेगा यस। तो जब आंसर मिलेगा यस, तो आपको फिर एक क्वेश्चन पूछना है कि कैन यू डू समथिंग अबाउट इट? आपको फिर से क्या पूछना है कि क्या आप उस प्रॉब्लम के लिए कुछ कर सकते हैं? तो अगर आंसर मिलता है हाँ, तो क्यों परेशान होना है? यस, आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? अगर आपको आंसर मिलता है हाँ, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। और अगर आंसर मिलता है नो, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दैट इज समथिंग जो आपके बस में नहीं है, उसको छोड़ दो, समय के ऊपर छोड़ दो, ऑटोमेटिक वो सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि रात जितना भी गहरा हो, सुबह तो होता ही है, भले हम चाहे या ना चाहे। यस, और अगेन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन कि अगर हम कुछ कर सकते हैं, अगर हमें प्रॉब्लम है, पहले क्वेश्चन पूछना है, फिर अगर हाँ पूछना है, अगर हाँ आंसर आता है तो पूछना है कि क्या आप उसके लिए कुछ कर सकते हो। अगर हाँ आता है तो प्रॉब्लम किस बात का, टेंशन किस बात का, खुश रहो, बिंदास रहो, मस्त रहो। दूसरा, अगर आंसर मिलता है नो, तो फिर भी टेंशन किस बात का, जब आपको उसका हल ही नहीं पता है तो आप एफर्ट डाल के भी कुछ नहीं कर सकते। ट्राई करिए, जितना हो सकता है उतना करिए, लेकिन उतना मत करिए कि उसके लिए आप स्ट्रेस फील हो जाए, अपनी फैमिली वालों के साथ आपका बुरा रिलेशन हो जाए। इतना नहीं करना है, ठीक है? तो जब भी आपको स्ट्रेस फील करते हैं, टेक अ डीप ब्रीथ, काउंट 10 एंड स्टार्ट लिसनिंग या स्टार्ट डूइंग योर हॉबी वर्क। जो भी आपको पसंदीदा काम है वो करना शुरू कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच SEMS family to giving me this wonderful opportunity, and this is my I have done. Thank you Ratul ji, thank you so much. Kevin ji unmute करिए आप। Sure, ma'am. On behalf of the organizing committee, I would like to express my hearty vote of thanks to our excellent, outstanding speaker, Ekta Gupta ma'am. Today, we got the opportunity to listen to an interesting and thought-provoking discussion on stress management. The amount of expertise and passion displayed by Ekta Gupta ma'am really enhanced our grasp of the topic stress management. Ekta Gupta ma'am skillfully imparted her knowledge, leaving us with such insightful conclusion and motivational concepts. Her interesting presentation captured our attention and motivated us to learn more. We appreciate the effort they put into preparing this enlightening session. Ma'am, our viewers and participants have few questions that they would want to answer. So, shall I proceed with the inquiries on behalf of them with your Yeah, consent and sure, approval? sure. Yes, ma'am. The very first question is from Jatin. The question is, how can mindfulness and meditation play a role in stress management, and what are some beginner-friendly practices? Yeah, the first beginner practicing is that immediately in one day, within one day, no one is going to be perfect, right? So mindfulness is one more important thing कि आप जो काम कर रहे हैं वहां पे ध्यान लगाइए। क्योंकि जब हम अक्सर एक काम करते हैं, एक टाइम पे दो काम को चूज करते हैं। सपोज मैं बहुत ही बेसिक से एग्जांपल लेना चाहूंगी कि हम अपने घर में ही करते हैं। इवन वी आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। खाना खाते हैं और खाना खाते खाते हम टीवी देखते हैं। यस, हमें तो ना तो टेस्ट का पता चलता है, ना हमें उस प्यार का पता चलता है जिन्होंने बहुत मेहनत से हमारे लिए खाना बनाया। हम उनको थैंक यू भी नहीं बोलते हैं, बस फटाफट कैसे भी खाना खा लेते हैं। टीवी में अगर तो उस फीलिंग को हम फील नहीं कर पाते, और जहाँ से हमें वो जो हार्मोन है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है वो रिलीज नहीं हो पाता है, बिकॉज ऑफ दैट लैकनेस। एंड द वन मोर थिंग कि जो टीवी देखते हैं, टीवी में हम क्या देखते हैं अक्सर, सावधान इंडिया, न्यूज, है ना, और कुछ भी, यू विल सी द तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कपिल शर्मा शो। तो मे बी दैट कैन बी यूजफुल। लेकिन जब जैसे ही हम कुछ नेगेटिव बातें देखते हैं, सास बहू वाले सीरियल देखते हैं, या फिर खाना खाते समय सावधान इंडिया देखते हैं, कुछ मर्डर वगैरह देखते हैं, immediately that negative impact is going to our mind, and it is very sad, and immediately some chemicals are going to be released which is not at all going to be helpful. Yes, so this is the thing, mindfulness and meditation is very powerful to Thank you for addressing this question, ma'am. Next question is from Khushi Rai. The question is, can you share some practical everyday techniques that people can use to manage the stress effectively?
Yes, yes, you can daily practice. आपको जो अच्छा लगता है, सबसे पहले तो बेसिक सी चीज है कि आपको जो सबसे अच्छा लगता है, you have to start that at regular practice, because 21 days takes to create one habit. If you want to do one thing, if you want to suppose a small example, you want to get up at 5 o'clock. आपको उठना है 5 बजे कि मैंने सुबह आपको जाना है, मुझे मैंने रजिस्टर करवाया है जिम में और मुझे 5 साढ़े 5 बजे वहां पहुंचना है। तो 5:30 बजे उठने के लिए आप एक दिन बहुत उत्साह के साथ चले जाएंगे और दूसरे दिन आपके जब मसल्स क्रैम्प आएंगे, पेन होगा, तो चल सो जा, अलार्म बंद करके आप अपने मन की आवाज नहीं सुनोगे, दिल की आवाज नहीं सुनोगे, आप सुनोगे रिलैक्स कंफर्ट जोन की आवाज सुनोगे और आप उस अलार्म को बंद करके वापस सो जाओगे। तो यहाँ पे एक रेगुलर प्रैक्टिस ये करना है कि जब आपका दिमाग ये कहता है कि नहीं करना है, आपको अपने दिमाग को ये समझाना है कि इट विल टेक फ्यू मिनट्स, लेट मी डू, देन आई गोइंग अलोंग विथ यू, आई लिसन टू यू। अपने मन की बात को जो सही है क्योंकि आपको भी पता है कि सही क्या है, लेकिन आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते और उस प्रैक्टिस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। तो ये सब चीजें बहुत आसान नहीं होती है, इसके लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। So slowly you have to start for yoga meditation. Start with 5 minutes, then it grow till half an hour. Thank you so much. Thank you for addressing this question as well, ma'am. Our next question is by Shraddhanjali. The question is how to deal with instant stress when we come across a situation. Pardon? Can I have? Sure, ma'am. Can I again? Can I hear the question? Yes, ma'am. The question is from Shraddhanjali, and the question is how to deal with instant stress when we come across a situation. Like that's what I said. Ki reaction and respond. Just now I gave in the PPT I gave one formula: E plus R is equal to O. So event will come. If you want, if you don't want, challenges will come. अगर हम नहीं चाहे कि आज मेरी बस छूट जाए तो क्या वो ऐसा होगा? अगर आप टाइम से जाओगे तो बस मिलेगी. Within 1 second also, if you be late, your bus will be missed. So event will, if you want or doesn't matter. Event will come, but according to that, what is the you are putting effort? Are you reacting with that problem or you are responding? That matters, and that output leads to the stress or happy life. Thank you. Thank you for addressing this question, ma'am. Next question is from Anjali Gupta. That is chronic stress curable? Every stress is curable if your mind will be mindfulness, if you are like taking the things in a positive way, everything is curable. बहुत सारे लोगों की बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं, बहुत किसी को बहुत आदत रहती है। आप देखे होंगे कि एक मैं ड्रिंकर्स का चेन स्मोकर का एग्जांपल लेना चाहूंगी कि बहुत पुराने लोग सिर्फ और सिर्फ एक थॉट की वजह से चेंज हो जाते हैं, जबकि उनके घर में उस स्ट्रेस से कितने सारे प्रॉब्लम आ चुके हैं, कितनी सारी चीजें आ सकती हैं, बट वो जो चेंज है दैट इट कम्स टू फर्स्ट इन योर माइंड एंड इट हैज यू हैव टू टेक एट अ पॉजिटिव नोट कि अगर मैं गिर गई, ओके गिर गई, ठीक है, इट्स ओके, होता है, लेकिन मैं गिर गई, क्यों गिर गई, मेरे साथ ही ऐसा होना था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो आप चीजों को कैसे एक्सेप्ट करते हो, इट मैटर्स अ लॉट। सो फर्स्ट आपको खुद से बात करना है दैट यू आर अमेजिंग, यू आर पावरफुल, you have that the like power कि you can face the challenges, which whatever the challenges is there you can face. Thank you Anjali. Yes, ma'am. And the next question is by Srishti. That what are the common signs and symptoms of stress? Common symptoms in stress is like sometimes कि we feel don't want to talk with anyone. First symptom कि हमें किसी से बात ही नहीं करनी है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, कुछ लोगों को बहुत खाने का मन करता है, स्वीट खाने का मन करता है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें लगने लगता है कि यस कुछ तो ऐसा हो रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। Immediately stop, think, take a breath and think what happened, rewind you and rewind, go back, rewind yourself कि क्या हुआ था जिससे मुझे ऐसी प्रॉब्लम हो रही है and then recorrect. Thank you for addressing this question. And our last question is from Ranjan Kumar. That how can we support friends or peers who are dealing with the high level of stress, ma'am? How can We support our friends or peers who are dealing with high level of stress.
या दैट इज द वन मोस्ट मोस्ट पावरफुल वेपन की हमें उनसे बात करना है। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जब स्ट्रेस में होते हैं ना तो दे कांट एक्सप्रेस, उनको अकेला रहना अच्छा होता है और जब वो गुस्से में आपसे बोल देते हैं अगर आप उनके कितने भी अच्छे फ्रेंड हो कि चल तू जा, मुझे इस तरह से बात ही नहीं करनी है, तो कुछ लोग होते हैं उनकी बात को बुरा मान के सच में छोड़कर चले जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना, आपको सबसे पहले तो उनको बात करना, अगर वो गुस्से में आपसे दूर भी जाना चाहे तो दूर नहीं करना, क्योंकि जब हम बात करना शुरू करेंगे ना दैट इमोशंस दैट जो मन का जो भाव है दैट इमोशंस एक्सप्रेशन will come out and automatically the person will level down. And our last question is, ma'am, is depression and anxiety relatable? Actually not, it's a quite relatable. Anxiety is something like अगर हमें बहुत सारा काम हो जाता है तो हम फील कर लेते हैं अरे ये क्यों हो गया, अभी कैसे करूँ और उसमें it leads to that stress. It look quite similar, it's not same, quite similar कि जब हमें anxiety होती है it leads to that stress. कि अब हम इसको कैसे करेंगे? जैसे वन आई गेव वन एग्जांपल कि जब हम नो नहीं बोल पाते हैं किसी, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो उस टाइम पे हम क्या करने लगते हैं, लोगों को स्ट्रेस फील, हमें खुद को स्ट्रेस फील होने लगता है और उस स्ट्रेस से हमारे घर वालों को भी तकलीफ होने लगती है। Thank you very much, ma'am, for answering all the questions asked by our participants. We really appreciated your excellent guidance, ma'am. Once again, I express my gratitude and thanks to Ekta Gupta, ma'am, for sparing time from her hectic schedule to impart information to us. We are speechless by your invaluable presence at this session. You provided in-depth analysis of the subject and shared some fascinating information. We shall bide our time for our further such events in order to advance both our personal and collective knowledge. Additionally, I would like to thank everyone in the attentive audience for their smart questions and active involvement. This event is considerably more meaningful because of your participation. Now, it's time to excitedly announce who we believe the most frequent participant in the session. The most engaging participants are Shraddhanjali, Khushi, Jatin, and Ranjan, and heartiest congratulations to them. A good event never ends in the world. They take only a pause and keep waiting for the next. All good things eventually, and I consider everyone as fortunate that they become a part of this workshop, which was full of knowledge, which makes us difficult to say goodbye. Again, thank you all for attending today's webinar. And if you have any additional questions, you can connect us by email or telephone. We are happily to provide you additional support to you. Moreover, for gaining such more knowledge and to know more about the new ideas, join us on 8th August on our international webinar on confident speaker being an enthusiast. So see you there. The end is never the end. It is always the beginning of something. I, Kevin Furana, host of the day, sign off on a cheerful note. Have a wonderful day ahead. Thank you very much.